जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जयो यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जयो यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्त्रोत्र श्रीमद्भय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक से चर्चा करेंगे। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षया वासु गतायुधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम तुष्टावजनयन् विसृजन जनार्दनम। तो इंग्लिश का ही भागवतम रखा है तो इंग्लिश का ही पढ़ते हैं। By pure meditation looking at Lord Shri Krishna, he at once was free from all material inauspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrow wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. Purport: the material body is a gift of
the material energy, technically called illusion. Identification with the material body is due to forgetfulness of our relationship with the Lord. For a pure devotee of the Lord like Bhishma Dev, this illusion was at once removed as soon as the Lord arrived. Lord Krishna is like the sun, and the illusory external material energy is like darkness. In the presence of the sun, there is no possibility that darkness can stand. Therefore, just on the arrival of Lord Krishna, all material contamination was completely removed. And Bhishma Dev was thus able to be transcendently situated by stopping the activities of impure senses in collaboration with matter. The soul is originally pure, and so also the senses. By material contamination, the senses assume the role of imperfection and impurity. By revival of contact with the Supreme Pure Lord Krishna, the senses again become freed from material contaminations. Bhishma Dev attained all these transcendental conditions prior to his leaving the material body because of the Lord's presence. The Lord is the supreme controller and benefactor of all living beings. That is the verdict of all the Vedas. He is the supreme eternity and the living entity amongst all the eternal living beings. And he alone provides all necessities for all kind of living beings. Thus, he provided all necessities to fulfill the transcendental desire of his great devotee Bhishma Dev, who prayed as follows. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबका स्वागत है इस भागवत कथा में। हम आज के श्लोक से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है भागवतम में, जिसमें भीष्मदेव ये अपने प्राण त्याग करने वाले हैं और भगवान असीम कृपा करते हुए भीष्मदेव के सामने प्रकट हो गए हैं। तो पिछले एक श्लोक में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। यन्मे असून त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः, कि भगवान इतने दयालु हैं कि मैं अभी अपने प्राण त्याग करने वाला हूं तो वो मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। तो भगवान की बहुत अनुकंपा है। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अभी भीष्मदेव जैसे ही भगवान का दर्शन किए, उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो जितने भी कल्मश थे उनके मन में, उनकी चेतना में, वो सब दूर हो गई। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार ये जो भौतिक शरीर है, बहुत अच्छा वो वाक्य लिखते हैं, इट इज अ गिफ्ट ऑफ मटेरियल एनर्जी। वो एक उपहार दिया है भौतिक जगत ने, माया देवी ने हमको, लेकिन ये ऐसा उपहार है जिससे हम
इस संसार की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिन नवतरेन्स आत्महा। सो निर्देह जो मनुष्य रूप है, मनुष्य शरीर है, वो बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि वो हमको सुलभता से प्राप्त हो गया है। ये एक ऐसा नाव है जिसमें बैठ के हम इस भव सागर को बहुत ही सरलता से पार कर सकते हैं। तो ये जो उपहार दिया है भौतिक जगत ने हमको, हालांकि ये एक अच्छा उपहार नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हॉस्पिटल में बैठ के तो ये बोल ही सकते हैं। व्याधि मंदिर है ये, इसको व्याधि मंदिर बोलते हैं शरीर को। तो ये जो शरीर है वो दुखों से भरा है, दोषों से भरा है, लेकिन इस शरीर से जो सबसे उत्तम वस्तु है वो प्राप्त की जा सकती है, वो है भगवान के प्रति प्रेम। तो वैसा बनाया ही है इस संसार में जीव को। भगवान ने वैसा बनाया है कि हम हालांकि इस बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन हम नित्य मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नित्य बद्ध जो जीव है वो कृष्ण से बहिर्मुख हो गया है, लेकिन यदि भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो वो नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते कर जाएंगे। तो ये इतना फ्लेक्सिबल बनाया हमको भगवान ने जीव को, कि जो सबसे दुखी अवस्था में हो या फिर कोई भी अच्छी भी अवस्था में हो, इस संसार में कोई भी अवस्था अच्छी नहीं है, किसी भी अवस्था में हो उससे निकल के वो उत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वो है कृष्ण प्रेम। तो श्रील प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में अपने शरीर से अपना संबंध समझता है कि यही शरीर ही सब कुछ है, और वो भूल जाता है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। जब जीव इस संसार में आता है, गिर जाते हैं हम इस संसार में, जब गिरे तो क्या क्या हुआ हमारे साथ। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं जैव धर्म में, सबसे पहले तो एक अज्ञान का आवरण आ जाता है जीव के ऊपर। हम भूल जाते हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास भूल गए। उसके बाद अज्ञान का आवरण आ गया, इग्नोरेंस। उसके बाद सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिल जाता है, और फिर वो इंद्र तृप्ति करने का प्रयास आरंभ करता है जीव। और हर प्रकार से इस संसार में दुख भोगने के पश्चात भी वो आशा नहीं छोड़ता है। आशा हमेशा बलवान रहती है। बनाए हुए मनुष्य, और जो आशा है, एक आशा ऐसी श्रृंखला है, हाँ, आशा नाम ही मनुष्या नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला बद्ध सर्व प्रधावंती मुक्त तिष्ठति पंगुवत। आशा एक ऐसी श्रृंखला है जो जिससे बंधा हुआ व्यक्ति है वो सब जगह भागता है। ये उल्टा है ना, बंधे हुए व्यक्ति को एक जगह बैठना चाहिए, लेकिन आशा से बंधा हुआ व्यक्ति सब जगह भागता है। और जो मुक्त है वो एक जगह बैठा रहता है पंगु की तरह। जिसको आशाएं नहीं है वो एकदम आराम से शांति से एक ही जगह बैठता है। तो इसलिए इंद्र तृप्ति का प्रयास करते करते, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते, कभी तो जब भक्त की कृपा होती है तब ये जो बुद्धि है वो दूषित बुद्धि वो शुद्ध होना शुरू होती है। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, यन्न व्रजन्त्य कविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषया कुकथा मतिघ्नि। जिनकी मति इस संसार के वस्तुओं में लिप्त है, वो कुकथा में लिप्त है। इस संसार की जितनी भी कथाएं हैं, पॉलिटिकल कथा, स्पोर्ट्स कथा, इधर उधर की जो भी कथा चल रही है वो सब कुकथा है, भागवत में बोलते हैं कुकथा। और इससे क्या होता है, मति घनी, मति भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है। तो जितना हम इस संसार की कथा सुनेंगे तो कृष्ण कथा सुनने की रुचि कम हो जाती है। तो जो बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाती है, जब हम इस संसार की कथा सुनते हैं और इस संसार के ऐश्वर्य को देख के उसमें लिप्त हो जाते हैं।
जैसे नलकुंवर मणिग्रीव के साथ हो गया। रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनतात्मजौ। रुद्र के अनुचर हैं, भगवान शिव जी के अनुचर हैं। बहुत ही सुंदर शरीर है। कुबेर के पुत्र हैं। और कैलाशोपवने रम्य मंदाकिन्यो मदोत्कटौ। कैलाश के उपवन में मदिरा पी के सब अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। तो इतना ऐश्वर्य है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वर्णन आता है एक छठे स्कंद में कि बृहस्पति जब इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं तो आदर्श ऐसा होना चाहिए कि इंद्र को खड़े होके उनका आदर सत्कार करना चाहिए, गुरु है। लेकिन इंद्र क्या सोचते हैं, अरे ये तो रोज आते हैं, रोज क्या प्रणाम करना है, एक बार कर लिया हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इंद्र को ऐसा कैसे मान हो गया, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। तो बोलते हैं इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्यम मदोल्लंघित सतपथई। त्रिभुवन का ऐश्वर्य उसके पास, तो सतपथ से, अच्छे मार्ग से वो गिर गया। और उसके पश्चात क्या होता है, उसके आसपास रहने वाले सब देवी देवता उनके गुणगान कर रहे हैं। स्तूयमाना, गुणगान चल रहा है। और इतना उनके लिए इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध हैं। तो भूल गया कि ये गुरु हैं। और और फिर दसम स्कंद में वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान जब गोवर्धन इंद्र पूजा छोड़ के गोवर्धन पूजा के लिए सबको प्रेरित किए, तो इंद्र क्या बोलता है, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देवहेलना। देखो ये ब्रजवासी कितने पागल हो गए हैं। कौन पागल हो गया है, इंद्र पागल हो गया, मद में बोल रहा है अहो श्रीमद महात्म्यम, देखो ये धन में पागल हो गए हैं। ये ग्वाले, ये वन में रहने वाले लोग एक छोटे से बालक की बात सुन के देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं। और ये कृष्ण क्या है देखो, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, इतना सारा एडजेक्टिव लगा रहे हैं। वाचाल है, बड़बड़ करने वाला बच्चा है। बालिश, अज्ञ, अज्ञानी है। पंडित समझ रहा है अपने आप को। चक्रवर्ती ठाकुर इसका अलग अर्थ देते हैं। तो बोलते हैं वाचालम मतलब जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़े लोग शांत हो जाते हैं। बालिश मतलब इनकी सरल बुद्धि है, कृष्ण एकदम सरल है। अज्ञ, अज्ञ अर्थात अरे उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है जानने के लिए अभी, वही तो सर्वज्ञानी है। पंडित मानिना मतलब बड़े बड़े पंडित लोग इनको मानते हैं। लेकिन इंद्र क्या है, इतना मद मस्त है, इतना ऐश्वर्य में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो सोच रहे हैं कि अरे कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जब इस संसार का सब ऐश्वर्य देखने लगते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि को शुद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस संसार में हमारा जो यात्रा है वो यात्रा है एक भ्रष्ट बुद्धि से शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने की। इंद्र तृप्ति करने की इच्छा से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, ये जर्नी है हमारा। और बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। कभी कभी इसमें जन्मों लग जाते हैं, कभी करोड़ों जन्मों लग जाते हैं। तो इसलिए भागवतम की कृपा से एटलीस्ट हमको समझना तो शुरू हुआ है कि शुद्ध करना है। नहीं तो समय के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है, एक वस्तु नष्ट नहीं होती है। क्या नष्ट नहीं होता है, अज्ञान और अहंकार, वो बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, सब नष्ट हो जाएगा, ये नहीं नष्ट होगा। इसलिए गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। पहले तो प्रार्थना कर रहे हैं मुझे ये इससे निकाल लिए, बहुत ही कष्ट है यहाँ पे, ये पकड़ लिया है मगरमच्छ ने। फिर वो प्रार्थना करते करते वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं भगवान अभी मुझे इनसे, इससे मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है, आप मुझे अज्ञान से मुक्त करिए। ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है वो अज्ञान का स्वरूप है। ऑलरेडी इस संसार में जो जीव है वो अज्ञानी है, और ये जो हाथी का जो शरीर है और भी अज्ञानी है।
इसलिए अभी जीने की इच्छा नहीं है। इस संसार से मुक्त करिए, क्योंकि समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अज्ञान नष्ट नहीं होता है। जिजीविषेना हमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावर्णयस्य मोक्षम। जिजीविषे न अहम, अभी जीने की इच्छा नहीं है। अरे इस संसार में इतना अज्ञान है, ऑलरेडी अज्ञान था ही, अंदर से बाहर से सब ज्ञान है। कालेन, काल के प्रभाव से सब नष्ट होता है, यह ज्ञान नष्ट नहीं होता है। और जब इस संसार का वैभव विद्या लेते हैं तो जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। मोह जन्मिया नित्य संसारे जीव के कोराए गाधा। अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन इसमें गाली दे रहे हैं मुक्तिनाथ ठाकुर। बोले गधा बन जाता है व्यक्ति काम करते करते। इस संसार का जितना जड़ विद्या हो, जड़ विद्या जितना लेगा, अरे अभी तो विद्या है, फिर धन आएगा, संपत्ति आएगी, अभी भगवान की सेवा करने का क्या लाभ। तो गधा बन जाता है। गधा तो बहुत सेलिब्रेटेड एनिमल है भागवतम में, बहुत गुणगान होता है गधे का। वही शाकनंदन इसलिए बोलते हैं उसको। समझता नहीं है कि भाई इस संसार का इतना मेहनत करके क्या होगा। श्री प्रभुपाद जी एक बार एक बिजनेसमैन को मिले। वो बोलता है स्वामी जी, जयपुर से था वो। स्वामी जी मेरा एक फैक्ट्री जयपुर में है, एक फैक्ट्री दिल्ली में है, बहुत सारा मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं सो नहीं पाता हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप अपना प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए, आप आराम से सोइए। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ टेंशन से निकलने का। बोले प्रयास मत करिए, हम है ना, हमको दे दीजिए आपका फैक्ट्री, हम चला लेंगे। तो बहुत टेंशन में आ गया, बोला ठीक ठीक है स्वामी जी, मैं आता हूँ, बाद में फिर से आऊंगा। तो प्रभुपाद अपने एक शिष्य को बोले इसका एड्रेस लो। तो बोलता है स्वामी जी मैं आऊंगा वापस, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। प्रभुपाद बोले हम भी आपसे कांटेक्ट करने चाहिए, तो इसलिए आपका एड्रेस दीजिए। तो इस संसार में कितना भी दुखी हो, कितना भी पिटाई हो, फिर भी इच्छा नहीं जाती है। लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इससे निकल जाऊंगा। तो वो बुद्धि को शुद्ध करना बहुत ही कठिन है, और अपने आप नहीं शुद्ध होगा। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी देवताओं की पूजा के बारे में बता रहे हैं। इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य की पूजा करो, अच्छी पत्नी चाहिए तो इनकी पूजा करो, अच्छा धन संपत्ति चाहिए, ये सब बहुत सारा वर्णन कर रहे हैं। तो उसके बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अच्छा ये देवताओं की पूजा करते करते कौन ये जीव जो है कब कृष्ण की पूजा में लगेगा, वो ऑटोमेटिकली होता है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी बोले ऑटोमेटिकली नहीं होता है वो। यद भागवत संगतः, जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। ये बुद्धि तब शुद्ध होगी जब भक्तों का संग होगा और भागवत का संग होगा। बुक भागवत, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत, जितना ये दोनों का संग करेंगे उतना बुद्धि शुद्ध होगी, नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिंद्रिय प्रीतया प्रणोति। इस प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत बार बोले हैं अपने कथाओं में। नूनम मतलब पक्का, जो इस संसार में जीव है वो पागल हो गया है। पागल नहीं, पूरा पागल है। प्रमत्त, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। उसको हर एक योनि में इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं जा रही है, क्योंकि मति भ्रष्ट है, मति शुद्ध नहीं होती है। वास्तविकता में आइडियल कंडीशन क्या है कि जो हमारी बुद्धि है वो हमें सही मार्ग पे लेके जाए, लेकिन हमारी बुद्धि तो अभी भ्रष्ट है। बुद्धि भी मन के ही साइड में रहती है। मन बोलता है इंद्रिय तृप्ति कर लो, तो बुद्धि बोलता है चलो प्लानिंग करेंगे कैसे करना है। तो कभी इच्छा जाती नहीं है वो, इसलिए पागल हो जाता है जीव। बुद्धि भ्रष्ट होगा तो पागल ही होगा। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो इस संसार की इंद्रिय तृप्ति में लग गए। तो इसलिए बार बार जब ये पढ़ते हैं
तब लगता है कि ये बार बार इतना क्यों बोल रहे हैं, सच में कुछ तो है लगता है। एक बार एक डिवोटी जाके प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद जी आप एक ही चीज बार बार लिखे हैं अपने पुस्तकों में, यू शुड नॉट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। अरे इतना रिपीट क्यों करते हैं? प्रभुपाद बोले फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, बार बार सुन रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। पाइया मनुष्य जन्म जेना शून्य गौर गुण है न जन्म तारा व्यर्थ होइला। पाइया अमृत धुनि पिए विषयगर्त पानी जन्मी से केने नाही महिला। तो कविराज गोसाई बोलते हैं, अरे मनुष्य जन्म लिया है और गौरांग महाप्रभु का गुणगान नहीं सुन रहे हो, व्यर्थ हो गया जीवन। हे न जन्मा तारा व्यर्थ होइला। अरे ये तो ऐसा ही है कि किसी को अमृत की नदी मिले और वो क्या कर रहा है, वो विष पी रहा है, विष के गड्ढे, एक गड्ढे में से विष पी रहा है, तो और क्या बोलेंगे। तो इसलिए यदि बुद्धि अगर शुद्ध करनी है तो ये कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। नहीं तो भागवत में बोला जाता है कि जो कान है, जो इंद्र तृप्ति के बारे में ही सुने और कृष्ण कथा ना सुने, वो कान जो है वो ऐसा होल है जहां पे सांप रहता है। और सांप आता है, कौन सा सांप रहेगा? जो मृत्यु रूपी सर्प है, धीरे धीरे आएगा पास में। समय बीतता बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया। इंद्र तृप्ति में लगे हुए व्यक्ति को कभी नहीं समझता है कि कब मेरा समय आ गया, कब मैं बूढ़ा हो गया। जैसे ययाति महाराज के बारे में वर्णन आता है, इतने सालों तक इंद्र तृप्ति करने के पश्चात ऐसा लगा उनको कि समय तो ऐसे चला गया। हमको भी ऐसे ही हमेशा लगता है, अरे अभी तो बच्चे थे, अभी तो स्कूल में थे, अभी कॉलेज में थे, अभी डिग्री भी हो गया, अभी शादी, अभी बच्चे, अभी बूढ़े हो गए हैं, समय निकल जाता है। तो इसीलिए भागवतम में बहुत ही कभी कभी बहुत ही स्ट्रांगली बताया जाता है कि ये इंद्रियों को कृष्ण कथा में लगाइए। कान से कृष्ण कथा सुनेंगे तभी उसका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। जिह्वा को यदि कृष्ण कथा बोलने में लगाएंगे तभी उसकी सिद्धि है। नहीं तो वो जिह्वा कैसी है? वो एक मेंढक की जिह्वा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मेंढक वर्षा ऋतु में टर टर करता रहता है, उसको लगता है बहुत आनंद है, लेकिन क्या होता है, सांप को आकर्षित करता है, और सांप आता है, पता चलता है उसको कि यहाँ पे मेंढक है, उसको खा जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे इस संसार में केवल एक ही वस्तु की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत। बाकी सब कुछ है इस संसार में, लेकिन क्योंकि ये एक वस्तु नहीं है इसलिए कभी भी शांति नहीं मिलती है, कभी भी सुख नहीं मिलता है इस संसार में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे परीक्षित, आपकी बुद्धि इतनी स्थिर है, इस विषम परिस्थिति में भी आप एकदम स्थिर बुद्धि के साथ बैठे हैं यहाँ पे। इसका इसका रहस्य क्या है? सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। तो बोल रहे हैं कि हे परीक्षित, आपकी बुद्धि एकदम व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि कृष्ण कथा में लगी हुई है। वासुदेव कथायाम ते तज्जाता नैष्ठिकी रति। आपकी जो रति है कृष्ण कथा में निष्ठित रूप से लगी है, अर्थात कभी भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं है उसमें, कभी भी ऐसा डाउट नहीं होता है पता नहीं आज जाएं कि नहीं जाएं आज सुनने के लिए कथा। हर हफ्ते तो होता ही है, आज थोड़ा मिस करते हैं। स्थित बुद्धि है एकदम, कभी भी उसमें संशय नहीं होता है। तो जिसकी बुद्धि कृष्ण कथा में लगी है उसकी बुद्धि में कोई भी विकार नहीं आता है कभी। तो इसीलिए परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि मरने के समय भी इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो भी दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। दो प्रश्न पूछते हैं वो, इस संसार में ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो मरने वाला हो, और इस संसार में साधारण रूप से हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों क्वेश्चन सबके लिए हैं। कौन बोल सकता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अमर हूं? कोई नहीं बोल सकता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि बुद्धि स्थिर हो, शुद्ध हो। और जब कृष्ण बुद्धि में प्रवेश करते हैं तब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ पे भीष्मदेव की बुद्धि, हालांकि भीष्मदेव ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करने के लिए यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है। वो अपने विकारों से मुक्त हो गए। कौन सा विकार था उनके मन में? वो ये सोच रहे थे कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ कृष्ण की, उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत ही विलाप कर रहे थे, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। तो जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, वो जितनी भी उनके मन में दुख था, क्लेश था, वो दूर हो गया है। तो इसलिए जितना हम सुनते हैं इस संसार के कथा के बारे में, दुख बढ़ता है। और जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो दुख कम होता है। इस संसार की कथा सुनते हैं तो ताप बढ़ता है। इस संसार की सुंदरता को देखते हैं, इस संसार के ऐश्वर्य को देखते हैं तो मन का ताप बढ़ जाता है। कृष्ण के सुंदरता को देखते हैं तो ताप कम होता है। जैसे रुक्मिणी देवी बता रही हैं, उसमें एक पत्र लिखती हैं, उसमें सबसे पहला श्लोक यही लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम। हे भगवान, जब से आपके गुणों के बारे में सुना है, देखा तो नहीं अभी तक, केवल सुना ही है कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के दर्शन से लाभ होगा ऐसा नहीं है, कृष्ण कथा से उतना ही लाभ होता है। क्योंकि कृष्ण का नाम, रूप, गुण सब एक आध्यात्मिक स्तर पे ही है। हरतो अंग तापम, अंग ताप निकल जाता है, बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। और जब बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे नारद मुनि के बारे में वर्णन आ गया इस पांचवें अध्याय में। उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, कोई भी नहीं है अभी, 5 साल का छोटा बालक है, फिर भी वो क्या सोच रहे हैं, ये भगवान की कुछ तो कृपा होगी, कृष्ण का कुछ तो प्लान होगा। तो ये जो बुद्धि है वो बहुत ही दुर्लभ है। मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, वो कृष्ण का प्लान है, वो बोलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ध्रुव महाराज को जब सुरुचि ने प्रताड़ित किया, बहुत ही कठोर शब्द बोले कि यदि तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो रोते रोते आए सुनीति के पास, तो सुनीति क्या बोलती हैं? सुनीति दो चीजें बोलती हैं कि हे ध्रुव, जिसने आपको दुख दिया है उसके प्रति बुरा मत सोचो, और दूसरा, ये तुम्हारे कर्मों का फल होगा। ऐसा नहीं बोलती सुरुचि को उसको कर्मों का फल मिलेगा, नहीं। तो ये जो बुद्धि है बहुत ही दुर्लभ बुद्धि है। जब दुख आए तो दूसरों को ना दोष दें, और दूसरों को दुख भी ना पहुंचाएं, उसके लिए भी प्लान ना करें। ये समझेंगे कृष्ण का कुछ तो प्लान है, अब क्या करना है। ये बोलते हैं, यू शुड नॉट आस्क व्हाई, वी शुड नॉट आस्क व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, क्यों हो गया मेरे साथ। पूछिए अब क्या करना है, अब क्या सीखना है इससे, क्या चाहते हैं कृष्ण मुझे इससे बताना। वो समझना मुश्किल है, वो समझने का प्रयास करना है। और भागवतम में हर एक डिवोटी वही बता रहे हैं, अपने जीवन के माध्यम से वही बताए हैं। भागवत में ऐसा कोई भी आप स्टोरी नहीं सुनते हैं ये बहुत अच्छे डिवोटी थे, जीवन भर उन्होंने अच्छी भक्ति की और भगवत धाम चले गए, हरि बोल। नहीं होता ऐसा। भागवतम के उदाहरण ही ऐसे हैं कि जिनके जीवन में दुख आए हैं, कठिनाइयां आई हैं एक से बढ़कर एक, उनसे वो कैसे निकले हैं भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, टू बी ग्रेटफुल इज नॉट अ पार्ट ऑफ भक्ति, टू बी ग्रेटफुल इज भक्ति।
कृतज्ञता भक्ति का एक अंग नहीं है, कृतज्ञ रहना ही भक्ति है। भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना हर एक चीज के लिए, वही भक्ति है, टू बी ग्रेटफुल। तो जितना हम समझेंगे कि ये भगवान का कुछ तो प्लान है मेरे लिए ही है। जैसे विदुर जी को जब दुर्योधन ने निकाल दिया बहुत ही कठोर क्रूर शब्द बोल के, तो विदुर जी क्या बोलते हैं? ये भगवान का प्लान है। उरु मानयान स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायां भ्रातु पुरमर्म सुताड़ितोपि स इत्थमत्युल्बण कर्णबाणैर्गत व्यथोयत उरुमानयान। उरुमानयान, ये भगवान की योग माया शक्ति है जो मुझ पे कार्य कर रही है। अपने धनुष को वो महल के दरवाजे पे रख के चले गए। तो ये प्लान है भगवान का। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि जितने कल्मश है उनसे मुक्त हो जाती है, तो सबसे पहला उसका प्रभाव क्या है? वो डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरा, उसके जीवन में कभी भी भ्रम नहीं होता है। इवन मरते समय भी भ्रम नहीं होता है। भागवत में वर्णन आता है कि जो भगवान की कथा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अंत काले भी उनको अंत समय में भी भ्रम नहीं होता है। न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत काले भी। अंत काल में भी कुछ भ्रम नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से समझाए हैं, दिखाए हैं। मरने के समय भी परपोर्ट लिख रहे हैं। हमको सर्दी खांसी जुकाम भी होता है तो लगता है कि कोई डिस्टर्ब मत करो भाई, थोड़ा आराम करना है। वो तो देखे होंगे आप प्रभुपाद जी का वो वीडियो। प्रभुपाद जी एकदम अंतिम समय में है और जयद्वैत महाराज सामने डिक्टाफोन लेके बैठे हैं। हम अभी बीमार होंगे और बोलेंगे प्रभु जी कुछ लेक्चर दीजिए। वो लेक्चर बाद में, पहले मेरे को सोने दो, आराम करना है पहले। तो ये शुद्ध भक्त दिखा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो डिस्टरबेंस नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है, और हम निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। क्या सही है क्या गलत का निर्णय ले सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले ही वर्णन आ गया कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन उसके पीछे भाग रहे हैं कृष्ण के साथ, तो अल्टीमेटली वचन लिया ना कि अश्वत्थामा का सर लेके आऊंगा काट के। लेकिन जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो उसको मारे नहीं अर्जुन, क्योंकि सोचे अरे ब्राह्मण है। उसको बांध के लेके आ गए अपने शिविर में वापस। और द्रौपदी जब देखती है कि अरे अश्वत्थामा को बांध के लेके आए हैं, अभी द्रौपदी का हृदय भी ऐसा है जिसके 5 पुत्रों की मृत्यु हुई है और जिसने मारा है उसको देख के क्या बोल रही है? अरे इसको छोड़ दो। धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत, ये धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मण को कैसे मार सकते हैं आप? ये न्याय नहीं है। अरे जिसने आपको सिखाया है उसके पुत्र को आप मारोगे? अरे मैं जिस प्रकार विलाप कर रही हूं उसकी माँ भी विलाप करेगी वैसे। जैसे बहुत सारे कारण बताती हैं। तो पहले तो कृष्ण बोल रहे थे मार दो। कृष्ण भी टेस्ट करते रहते हैं डिवोटीज को, कितना समझा है, सुना कि नहीं सुना, कि खाली सर हिला दिया। तो टेस्ट किए। अर्जुन को बोले अरे मार दो, ये अपने ये ये तो द्विज बंधु है, इसको मार देना चाहिए। और जब द्रौपदी के इतने सारे वाक्यों को सुने तो कृष्ण बोलते हैं नहीं मत मारो। युधिष्ठिर बोलते हैं मत मारो। नकुल सहदेव सब बोल रहे हैं मत मारो। एक व्यक्ति बोल रहा है मार दो। कौन बोल रहा है? भीम। भीम बोल रहा है अब भी मारो सबसे पहले इसको। तो फिर कृष्ण बोलते हैं देखो अर्जुन, अभी तुमको डिसाइड करना है। तुमने तो वचन लिया था कि मार दूंगा, और द्रौपदी, तुमको सबको संतुष्ट करना है अभी, द्रौपदी को भी, युधिष्ठिर को भी, मुझे भी और भीम को भी। अभी डिसाइड करो क्या करना है। पूरा धर्म संकट बड़ा सा, क्या करें? तो यहाँ पे सुखदेव सूत गोस्वामी बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं।
अर्जुना सहसाज्ञाय हरेर्हार्दं मथासिना। अर्जुना सहसा आज्ञाय, वो एक सरलता से समझ गए। हरेर हार्दम, कृष्ण का हृदय, कृष्ण क्या चाह रहे हैं समझ गए वो। तो क्या किया उन्होंने? मणिम जहार मूर्धन्याम द्विजस्य सह मूर्धजम। तो उनके जो सर पे मणि थी उसको निकाल दिया और उनको एक अच्छा हेयर कट दे दिया। उनके बालों को काट दिया अलग प्रकार से, वो उनका अपमान किया। तो हरेर हार्दम कैसे समझ गए अर्जुन? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के ही वचनों के अनुसार जिए हैं, कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जिए, इसलिए वो हरेर हार्दम। जब हम कृष्ण के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब ये विकट परिस्थितियों में अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, बुद्धि शुद्ध रहती है। नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती है फिर। जब हम सोचते हैं यार ये डिवोटीज लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, तो फिर कृष्ण का हृदय नहीं समझ पाते हैं। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो हम दूसरों के ओपिनियन से भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, ऐसा करो वैसा करो। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा में, वो एक श्रीरंग में एक ब्राह्मण को देखे कि एकदम अनपढ़ ब्राह्मण है और पढ़ रहा है उल्टा पुल्टा भगवत गीता, आता नहीं है पढ़ना फिर भी पढ़ रहा है। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। पूरा 18 अध्याय रोज पढ़ता है, अशुद्ध पढ़े न लोक, अशुद्ध पढ़ रहा है और लोग उपहास कर रहे हैं। केहा से केहा निंदे तहा नहीं माने, आविष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने। कोई हंस रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। आनंदित मने, आनंद मन से गीता पढ़ रहे हैं। और उनको गीता पढ़ के क्या हो रहा है? पुलक अश्रु कंप स्वेद यावत पठन, देखिए आनंदित होइला महाप्रभुर मन। तो उनको अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है। तो महाप्रभु समझ गए कि ये तो अलग व्यक्ति है भाई, पढ़ भी नहीं पा रहा है फिर भी इतना प्रसन्न क्यों है। तो महाप्रभु पूछते हैं उनको, कौन अर्थ जानी तुम्हारे इतना सुख हुए? अरे क्या समझ रहे हैं, आपको इतना सुखी है, इतने खुश हैं आप, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं आप तो ये बोलते हैं, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो महाप्रभु बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन आप इतने खुश कैसे हैं, समझ नहीं रहा है फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? तो बोलते हैं, जब मैं ये भगवत गीता का कवर पेज देखता हूँ ना पहले, तो मैं देखता हूं अर्जुनेर रथे कृष्ण होए रज्जुधर, बसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। अरे अर्जुन के रथ पे कृष्ण रस्सी पकड़ के बैठे हैं रथ की, और अर्जुने रे कहिते छे ना हितोपदेश, यही लागी होए मोरो आनंद आवेश। और अपने भक्त को कृपा करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, ये देख के ही मैं आनंद में हूं, बाकी कुछ समझ नहीं रहा है। तो ये है स्थिर बुद्धि, जो गुरु के आज्ञा में लगी हुई है। तो कोई कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये सम्यक बुद्धि का प्रभाव है। और ये सम्यक बुद्धि कैसे आएगी? जब हम भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा और हरिनाम जप तीव्रता से, नम्र भाव से करते रहेंगे, तब धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी। जितना कृष्ण मन में प्रवेश करेंगे, बुद्धि में प्रवेश करेंगे, तो बुद्धि शुद्ध होगी और इस संसार के किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं होगा। तो ये है कृष्ण भक्ति का प्रभाव। तो जितना हम भक्ति में लगेंगे तीव्रता से, ये कृष्ण कथा सुनते रहेंगे, भागवत कथा सुनते रहेंगे, तो बुद्धि शुद्ध होती रहेगी।
हरिनाम जप से मन शुद्ध होता है, भागवतम से अपनी बुद्धि शुद्ध होती है कृष्ण कथा से, और जो संग से अहंकार शुद्ध हो जाता है। नहीं भी चाहेंगे तो शुद्ध होगा। भक्तों के संग का प्रभाव है, शुद्ध करके ही छोड़ेंगे। वो हमारे लिए होप है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो वंडरफुल दैट वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड टू सक्सेस। रूपा जी लिखते हैं उपदेशामृत में। नहीं चाहेंगे तो भी शुद्ध बना के ही छोड़ेंगे आपको। एक बार घुस जाओ बस, एंट्री करो, बाकी हम देख लेंगे। वैसा भक्तों का संग है। तो यहाँ यही, इस श्लोक में ये चर्चा थोड़ी बहुत की हमने। तो यहाँ पे कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हाँ, प्लीज। यस सर। आपको तो यही ना। आपका